तो मैं भी आपको कलर सिस्टम पढ़ा रहा था। कलर सिस्टम के अंदर मैं आपको बता दूं, वाइट, प्योर वाइट कलर इज बिलोंग्स टू मिलिट्री डिफेंस कलर। यस, इट्स डायरेक्ट थ्रेट, that threat is a color is a white. Yes, it's to signify death warrant, white color. First thing. Second, chocolatey color and a chocolate belongs to Indian police system. Khaki is a skin color. Yes, and black is also belongs to police system. It's not. It's not. It's a force color. Maroon denote bloods. So we don't like to spread maroon color because every agency has to work only on a one thumb rule, and that is stop killing. Because we are from intelligence agency, and it's a duty of intelligence agency to stop war. And in intelligence, we can easily stop the wars, and we can easily stop the terrorism, other forces to ignite war and riots. On YouTube, you can search Hitesh Revan hashtag. You'll find videos of car agencies. Myself, Hitesh Mandal, I'm chief of car agency. And yes, as an additional chief, car agency is awarded to Kalishwar Rana. Congratulations, Mr. Kalishwar Rana. Now you are additional chief in car agency. I hope you know lots of things. Other things will teach you, not your family. You'll have to watch your family first. If they suits, then you can ask us to. We'll give them entry inside your inside your circle. We are providing you a 3-layer security, and your budget starts from 438 lakh crore rupees. Because as I directed you, supervise, it means 438 lakh crore rupees you can print it. But why and how you manage and how you can make purchase? Because myself, Hitesh Mandal, I designed a Kalishwar missile, world's strongest and deadliest multiple warhead missile. Congratulations again. It's just on your name. I never bother myself what kind of previous mindset you have, but I would like to say you, please keep it in your mind. Myself, Hitesh Mandal, my residence is A204 Chhatrapur Enclave, Phase 1, Gully number 5. Yeah, I think you know me. Yes, you know me. 2367 is your belt number. I'm taking you inside the agency via research and analyzing wing. अब इसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ आपके पास कितना पैसा है या आप कितने बड़े स्टारडम पे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार एजेंसी के अंदर चीफ मैं हितेश मांडल and additional chief Kalishwar Rana. His house number is A376, Chhatrapur Enclave, Phase 1, Gully number 5.
एंड अब यहाँ चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे चाहे मोदी टीम हो, कोई भी हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हम लोग अपने आप को पॉलिटिकल नहीं करते हैं ज़्यादा। हाँ, ये ज़रूर है, हम लोग इस बात पे ज़रूर ध्यान देते हैं कि पॉलिटिकली और पॉलिटिक्स के अंदर कहीं कुछ ऐसा ना हो कि ये लोग वॉर डिज़ाइन डिज़ाइन कर दें, या धमाके हों, या लोगों की हत्याएं हों, राइट्स हों, दंगे भड़कें। इन चीज़ों पे हम लोग ध्यान रखते हैं। हमारा काम क्या होता है? रोज़ आने वाली न्यूज़ पे ध्यान देना। फिलहाल जो अपडेट्स हैं वो एक्यूरेट हैं। भारत में अभी भी इमरजेंसी लगी हुई है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इमरजेंसी लगा दी गई है, और ये कोविड के देखते हुए लगाई गई है। कोविड-19 के अंदर चीन की तरफ से जिस तरह के वायरसेस को रिलीज़ किया जा रहा था, और ये कह के कि वो मेरी वजह से रिलीज़ किया जा रहा था, ये गलतफहमी है। चीन एशिया महाद्वीप में अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहा था, और वो खामखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को प्रोवोक कर रहा था वॉर के लिए। इसमें रूस के पास ज़्यादा तो कुछ था नहीं, उनकी इकॉनमी वैसे ही डामाडोल है। चीन बार बार पूरे विश्व को धमकी दे रहा था। हमने चाइना की पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो काम हो सकते हैं वो ऑर्डर किए। मैं भारत के अंदर चीन के द्वारा पैसा लेके नरेंद्र मोदी अपनी गवर्नमेंट चला रहा था। मेरे द्वारा पहने जाने वाला लाल या पीला कलर चीन से कोई संबंध नहीं रखता है। अगर चीन ने अपनी वायरस बनाने वाली लैब्स को बंद नहीं किया और इस तरह की हरकतें बंद नहीं करी, तो हम चीन को ख़त्म कर देंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई सभ्यता बचे या ना बचे। हम ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 50,000 लोगों को बचाएंगे, उसके बाद पूरी चीन को ख़त्म कर देंगे। वो भी उनको जो खाना बनाना जानते हो, कपड़े सिलना जानते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद मल्टी मिलियनेयर या मल्टी बिलियनियर या आपका सैटोलिन क्लब्स के किसी भी इंसान को हम जिंदा नहीं रखेंगे। पैसा धरती पे कोई मायने नहीं रखता है। पैसा आप जितना चाहें उतना छाप सकते हैं, पर उसकी अथॉरिटी किस तरीके से होगी ये हम तय करते हैं। का से करेंसी होता है, आप चाहें या ना चाहें। हम सीधी बातों में बात करना पसंद करते हैं। पूरे विश्व में हमने यही बात समझानी चाहिए थी। ईरान का अंत करने का हमने इसीलिए सोचा था क्योंकि सेम कोविड-19 का वायरस ईरान में भी बनाया जा रहा था। हमने ईरान को समझाया, पर ईरान नहीं माना। वो बार बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वेसल्स पे हमला करके युद्ध को प्रोवोक कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने संयम बरतते हुए पूरे विश्व में एक इस बात के लिए जरूर सबको समझाना चाहा कि युद्ध किसी भी बात का हल नहीं है। इन लोगों ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए पूरे विश्व को युद्ध की तरफ धकेला। यही कार्य इमरान खान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया, और इनका कहना यह था कि अगर कुलभूषण ज़्यादा मारा जाता है तो डेफिनेटली भारत वॉर को इग्नाइट करेगा। पर जिस तरह से हमने वॉर को हैंडल किया है, ये बात पाकिस्तान ने सोची भी नहीं थी, और कोई वजह नहीं थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दूसरे प्रेसिडेंट्स की तरह सोच करके वॉर लड़ने के मूड में था, और अपना नाम इतिहास में अमर करना चाहता था, चाहे इसके लिए भारत के कितने ही कुलभूषणों की बलि दी जाए। ये कार्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारतीय जनता पार्टी और इमरान खान और दूसरे कुछ इस्लामिक मुल्कों ने मिलकर सोचा था। इसमें चीन भी इन्वॉल्व था। मेरा कहना साफ सीधा सा है, आप जैसे नेताओं को हम भगा भगा के गोली मार देते हैं। हमने कभी भी भारत को युद्ध में धकेलने की नहीं सोची है। भारत हमेशा से विश्व शांति में विश्वास रखता रहा है, और यही सोच के हमने कुलभूषण जाधव को रिलीज के लिए कहा था। कई बार कुलभूषण जाधव के मामले में जब भी हमने पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान में बैठी हुई साफ जो वहाँ की पॉलिटिकल लॉबी है, उन्होंने कुलभूषण जाधव को रिलीज करने से मना कर दिया था। वो जानते थे कि अगर चाय पीजिए, अगर कुलभूषण जाधव मारा जाता है तो युद्ध जरूर होगा। देखिए, युद्ध में ये कभी तय नहीं होता है कि कौन मरेगा। ये लोग तो हाइबरनेशन में चले जाएंगे, नेता लोग गुफाओं में घुस जाएंगे, कोई कहीं छुप जाएगा। मरेंगे कौन? सिक्योरिटी फोर्सेस। सिक्योरिटी फोर्सेस का मतलब युद्ध लड़ना नहीं होता है, यह आप लोगों की गलत फहमी है। सिक्योरिटी फोर्स का अर्थ यह होता है कि दोनों देशों की जनता जो है वो अपने अपने दायरे में रह करके अपना जीवन यापन करें, और समाज में पनपने वाले इस तरह के आतंकवादी संगठन जो हैं समाज में दंगे फसाद ना भड़काएं। क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, इसलिए राष्ट्र में कह रहा हूँ, दोनों के बीच में धर्म के आधार पर युद्ध होना तय है। कुलभूषण जाधव की हत्या का प्लान सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में
युद्ध को बढ़ावा देने के लिए था। पर जिस प्रकार से पाकिस्तान में बैठे लोगों ने, जो कि अपने आप को पॉलिटिकल लॉबी मानते हैं, मिलिट्री जर्नल्स मानते हैं, उन्होंने कुलभूषण जाधव को मरवाने का जिस तरीका इस्तेमाल किया कि पहले उसको जो है क्या कहते हैं अरेस्ट से भागा हुआ दिखाएंगे और बाद में उसको जो है आईएसआईएस के द्वारा सरेंडर करा देंगे। ये इनका मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। कुलभूषण जाधव ने अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑर्डर लेते हुए अपने आप को ख़त्म किया और युद्ध रोकने की कोशिश करी। बाद में हमने सीधे तौर पे कह दिया था कि जहां भी कुलभूषण जाधव का शरीर गिरा, हम वहां तक धरती ले लेंगे। यदि आपने रोका तो उसके बाद हम बताएंगे। पाकिस्तान के अंदर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा, रावलपिंडी, ये सभी स्टेट्स हमारे कब्जे में हैं। हम लोग का एजेंसी के लोग हैं। का एजेंसी विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी है। यदि आप इसको दूसरी भाषा में लिखेंगे तो इसको सीए लिखते हैं, इसका मतलब सेंट्रल एजेंसी होता है। हमने इनको साफ कहा था कि यदि आप इस तरह की हरकत बंद नहीं करेंगे, भाई एक बात बताइए यार, एक जासूस आपने पकड़ लिया, मान लिया आपकी बात, आप छोड़ देते? आपने उसे टॉर्चर किया। आप जासूस पकड़ने के बदले में आप पेनल्टी लगवा सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़। आप उसको ब्लास्ट में बता रहे हैं कि उसने ब्लास्ट प्लान किया है। ये सरासर झूठ था। ये कार्य आपके द्वारा किया जाता है। हाफिज सईद जब यहाँ से कंधार हाईजैकिंग के अंदर मांगा गया, हाफिज सईद बाद में वो अपने आप को रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग का बता रहे हैं। बेवकूफ़ समझा है क्या? हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, ये सब कंधार हाईजैकिंग में छोड़े गए थे। कहाँ जाके इन्होंने पनाह ली? पाकिस्तान में ली। तो आतंकवादी देश पाकिस्तान हुआ या हम हुए? हेतल पारिक की हत्या जहाज के अंदर आपके लोगों ने करी थी साहब, पाकिस्तानी थे, और वो सीधे तौर पे पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे। आप लोग कहाँ जाके मुंह छुपाओगे? मैं इंटरपोल ऑफिसर 946 भी हूँ। हम लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, समझ में आई? इसलिए नहीं, जिस दिन मेरी हमजा से बहस हुई थी, हमजा ने मेरे को एक बात कही थी। हमजा ने ये कहा था कि आतंकवादियों में और इंटेलिजेंस में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों किलिंग्स करते हैं। मैंने गलत फहमी है। आप कमाने के लिए हत्याएं करते हैं, हम लोगों को बचाने के लिए हत्याएं करते हैं। और हमजा, हम तुझे मारेंगे ज़रूर, याद रखियो, अगर कुछ भी तूने गलती करी तो। बाद में कुछ दिन बाद जो है हमजा मारा गया और वो खुद अपनी बीमारी से मरा था। उसके बाद जिस दिन मेरी उससे बात हुई थी, उसी दिन वो मुझे अपना हमजा का कोड दे के गया था। पाकिस्तान ने साफ सीधे अक्षरों में कहा था। आज जो मैं सुबह एसपीजी वीडियोस चेक कर रहा था, तो उसमें मरियम नवाज शरीफ जी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सीधे तौर पे पाकिस्तान की सर्वदलीय बैठक में ये कह दिया था कि कुलभूषण जाधव को वो लोग जिंदा रिलीज नहीं करेंगे। तो मैडम ऐसा है मरियम नवाज शरीफ जी, अब पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी होगा वो उसकी जिम्मेवारी पूरी आपकी, इमरान खान और पाकिस्तान में बैठे हुए सभी मिलिट्री जनरल और सियासतदानों की है। एज ए का एजेंसी चीफ, हितेश रेवन मेरा ट्विटर हैंडल है। मैं एक ही हूँ, ठीक है? एसपीजीज चेंज क्या करना होता है, कैसे होता है, ये आप सब जानते हैं। अब जो कुछ भी आपके देश के साथ होता है उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। यदि चीन, रूस या किसी भी मीडिया एजेंसी ने दिमाग लगाया तो उनका हशर भी हम वही करेंगे जो पाकिस्तान को होने जा रहा है। मैंने एडक्राफ और रेजर्स बटालियन बनाई है, वो लोग आपको तड़पा तड़पा के मारेंगे। साफ सीधी बात है। जितना टॉर्चर आपने कुलभूषण यादव को किया है, आपका हर घर परिवार का हर बच्चा पाकिस्तान में हर व्यक्ति झेलेगा, ताकि धरती पे दोबारा कोई भी देश लाख समझाने के बावजूद ऐसी गलती ना करे। हमने पूरे विश्व में साफ साफ कहा था, यदि स्पाई वर्ल्ड के लोग आपके यहाँ पकड़े जाते हैं, आप जानते हैं, तो आप पेनल्टी लेके उन्हें छोड़ सकते हैं। पर आपने उनको मारने का जो गेम रचा और अपनी जिद, अपनी ताकत ताकत हम दिखाएंगे आपको। हम वो हैं जो आप कभी नहीं बन सकते। मेरे अंगूठे पे ये दिव्य अक्षर है, मैं दिखा देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है? मैंने आपको बचाने के हर रास्ते ढूंढे मरियम नवाज शरीफ जी। आपसे मैंने निकाह कबूल किया, शादी करी, राबी पीरज़दा जी, आप लोग नहीं माने। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? यदि आपने ज़्यादा दिमाग लगाया मैडम, तो याद रख लीजिएगा, 250 किलो RDX लगा के उड़वा दूंगा, ठीक है? इमरान खान के एक भाई को मैंने मरवाया था मैडम, क्योंकि वो सुन नहीं रहा था। ये देखिए, चार, हमने बहुत समझाया था इमरान खान के एक भाई को। वो ऐसा व्यक्ति था जो इन जिहादियों के साथ मिलकर काम करता था। आपने खुद अपने बेटे को, जी हाँ, अलकायदा में भेजा, जुनेद को। जुनेद हमारी कैप्टिविटी में है। ऐसा कोई इस्लाम नहीं होता मैडम। आप सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, हत्याओं को बढ़ावा देने के लिए सब काम कर रहे हैं।
भारत के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ये लग रहा था कि वो पाकिस्तान से वॉर लड़के कुलभूषण जाधव के नाम पे जो है क्या कहते हैं जीत जाएगा। अरे भाई आप मान ली बात आपकी, आप अपना नाम कमाना चाहते थे तो जनाब आप मीडिया में ये बात सीधे तौर पे कुलभूषण जाधव की रिलीज की आप क्यों नहीं बोलते थे मंच पे से? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ करके स्मृति जुबिन ईरानी और आपने खुद कुलभूषण जाधव को मारने के ऑर्डर दे दिए थे। समझ में आई? और वो भी आईएसआईएस को। आपके पास ब्लास्ट कोड था या आपने खुद एक्सेप्ट किया है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मैंने भारत में क्लीनिंग का काम आईबी को दिया था, टारगेट ओरिएंटेड किलिंग। ठीक है, तो भारत के अंदर आईबी वाले काम करते रहेंगे, टाइम लगेगा, निर्दोष को नहीं मारेंगे किसी को भी। बोलने में मन की सोच में चाहे कुछ हो, कई बार ऐसा होता है कि इस्लाम के अंदर लोग पैसे और धर्म के प्रेशर की वजह से आतंकवादियों के साथ जुड़ जाते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, हम आपको अलग निकाल लेंगे। पर अगर ब्लास्ट सीक्वेंस में आप में से कोई भी पाया गया तो आपको सेंट्रल एजेंसी की भयानकता से भिड़ना होगा। हम वो है जो आप कभी नहीं बन सकते। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ मरियम नवासरी जी आपके लिए। मैंने आपको गाली भी दी है, प्यार भी दिखाया है, गाने तक बनाए, मत कीजिए मैडम। आपने अलसबब बनाया, आप नहीं मानी। अब जो कुछ भी होने वाला है पाकिस्तान के साथ मैडम आप झेलिए, साफ सीधी बात है। ठीक है ना, कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता साए। आप जैसी पढ़ी लिखी महिला जो डॉक्टर भी है, एक है तीन है, भैया ये तो ईश्वर ही जाने, पता नहीं कौन सी सत्ता के लालच में पड़ गई। अरे उस लड़के का नाम तो सुन लेती हैं आप, कुलभूषण जाधव है उसका नाम भाई। आप लोग किस तरह से उसको ईरान के होटल में से ज़बरदस्ती आप स्मृति ईरानी 3 लड़कियां 4 लड़कियां भेज के उसको रात को खाने में आपने उसको बेहोशी की दवाई दी। उसके बाद उसको आप ट्रक में ले करके आप निकल गए पाकिस्तानी आर्मी वाले, किस लिए भाई? वो ईरान गया था तेल के काम में, हम तब भी मोदी को कुछ नहीं बोलते, चलता है नेता लोग कर लेते हैं, कमीशन वमीशन हमने ज़्यादा नहीं बोलते। पैसे के मामले 1 लाख 2 लाख कहाँ लेके जाएगा, रखेगा तो इसी धरती पे, कुछ तो खरीदेगा, क्योंकि सब का एजेंसी का है। हम तब भी कुछ नहीं बोलते। मारा क्यों कुलभूषण जाधव? कुलभूषण जाधव की हत्या का सारा दारोमदार आपके ऊपर जाता है पाकिस्तान पे। अब जब तक हमने ऑल ओवर वर्ल्ड में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पेंटागन और हमारे बीच में एक डील हुई थी, उसमें हमने साफ कहा था जहां भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी आईएसआईएस के लिए काम करेगी वहां हम भारत के लोग, मैं भारत का राष्ट्रपति 3760 मेरा बेल्ट नंबर, का एजेंसी चीफ आपकी मदद करूंगा, चाहे पैसे से हो चाहे हथियार से हो, जैसे भी हो। मैंने अपना सब कुछ का एजेंसी का सब कुछ डेल्टा फोर्स को दिया है। आज का एजेंसी की मैं फोर्स भी तय कर देता हूँ। ये जेएसआर सिक्योरिटीज़ नहीं है, वो एक कोड है, वो डेल्टा फोर्स है। डेल्टा फोर्स को आधिकारिक रूप से का एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी की फोर्स नियुक्त किया जाता है। इसमें यूएस नेवी सील या ब्लैक वाटर या पैरा एसएएफ या मार्कोस या इंडियन आर्मी या यूएई आर्मी, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। यदि पूरी विश्व की किसी भी आर्मी को ऐसा लगता है कि वो आईएसआईएस वालों को बचा सकते हैं तो आपकी गलत फहमी है। हम आईएसआईएस की पूरी फैमिली तक मार देंगे। हमारा जो टारगेट था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की यूएस नेवी सील ने पूरा किया है और उन्होंने अबू बकर अल हाशमी को मार गिराया है। तो आप जो रिवॉर्ड कहेंगे, जो ठीक ठाक होगा, हम साइन कर देंगे। मरियम नवाज शरीफ जी, मैं एक बात बता दूं, अबू बकर अल बगदादी को मारने के बाद 8 लाख अरब डॉलर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब को हमने दिए। यदि डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्रैक पे आना चाहें तो मैं आपकी सारी गलती माफ़ कर सकता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं एक छोटा सा शब्द होता है सॉरी बोलते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं बचाने के लाख तरीके यूज़ करूँगा, पर मारने का एक ही तरीका होता है, गोली मार देंगे भाई। ठीक है, पर मारेंगे ऐसी जगह सांस तो पूरी लेनी पड़ेगी तुझे, जिंदा रखेंगे, ये नियम है। अगर इसके बावजूद पाकिस्तान में बैठी हुई कुछ सुंदर सुंदर महिलाओं को हम मानते हैं, बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? मरियम नवाज शरीफ जी आप बहुत सुंदर हैं, क्यों नहीं कहेंगे? फिर राबी पीरज़ादा जी आप सुंदर हैं, बिल्कुल हैं। आप इवेंका ट्रंप आप भी बहुत सुंदर हैं, रेहाम खान आप भी बहुत सुंदर हैं। पाकिस्तान में वाकई महिलाएं बहुत सुंदर होती है, पर मैडम क्या करूं इस सुंदरता का मैं? आपने क्या ऑर्डर दे दिया था? सोच समझ के मैडम, वो भी किसी का परिवार था। जब का एजेंसी का चीफ
इमरान खान अच्छी तरह जानता था मेरे बारे में। मैं खुद आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने खुद कहा, इसमें मेरी उम्र और मेरी शकल सूरत में क्या रखा है? क्या देखने में क्या कहते हैं, जब तक वो बंदा मुसलमान ना हो तब तक क्या कहते हैं काय एजेंसी का चीफ नहीं हो सकता है? क्या सोच के भाई? अब तो हम पूरा पाकिस्तान काट के फेंक देंगे मैडम। एडग्राफ और रेजर्स बटालियन वाले का एजेंसी की सुप्रीम फोर्स में काउंट किए जाएंगे। यदि आज के बाद किसी भी देश ने हमारे आदेशों का उल्लंघन किया तो वहां पे रेजर्स बटालियन और एडग्राफ, अशोका द ग्रेट रेजर्स फोर्स पैरा एंटर 9 वाले अपना दम दिखाएंगे और रेजर्स बटालियन काट के फेंक देंगे। समझ में आ गई? हमने बहुत कोशिश करी, यूनाइटेड नेशन, आईसीजे, इंटरपोल तक ने कहा आप कुलभूषण यादव को आप रिलीज दीजिए, आप उसे भारत की कैप्टिविटी में दे दीजिए, आप जहां कहेंगे हम उसे पेश करेंगे। खुद रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग ने यह बात आईसीजे के कोर्ट में भी कही थी, पर आपने एक नहीं सुनी। सो ऐसा यार किसके दम पे कूद रहे हो भैया? क्या बात हो गई? हम भी तो सुने। कौन है यार धरती पे वो? ऐसी कौन सी फोर्स लेके पैदा हुए हो? अब मैं आदेश देता हूं डेल्टा फोर्स, रेजर्स बटालियन और एडग्राफ को पूरे विश्व में एक एक पाकिस्तानी को ढूंढ कर काट दीजिए। डायमेंशन हम चेंज करेंगे। पाकिस्तान में हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। मरीम नवाज शरीफ जी, समय रहते अगर आप पोडियम पे आएंगी तो ठीक है, वरना क्योंकि मैंने आपसे विवाह किया है, आएंगी तो ठीक है, वरना धमाके से उड़ा देंगे हम आपको और आपके पूरे परिवार को। पाकिस्तान नाम की नागरिकता हम धरती पर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आपने का एजेंसी के आदेशों का उल्लंघन किया है। और बात अगर एजेंसी के मान सम्मान की है तो मैडम सवाल ही नहीं उठता कि मेरे ऑर्डर्स जो हैं इधर उधर हो जाएं। किसी भी समय कालेश्वर राणा, कालेश्वर पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाएगा। और याद रख लेना मैडम, हम वो हैं जो आप कभी नहीं बन सकते। पाकिस्तान का काल आ चुका है, ठीक है? ये किस्सा ही निपटा दूंगा मैडम मैं। और जब तक आईएसआईएस धरती पे है तब तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हम साथ देते रहेंगे। डेल्टा फोर्स विश्व की सुप्रीम फोर्स में अपनी जगह बनाए रखेगी। थैंक यू वेरी मच। और ब्लैक वाटर, आप लोग डेल्टा फोर्स के ऑर्डर्स का पालन करेंगे। भारत में किसी भी फोर्स को यदि का एजेंसी की फोर्स में आना है तो आपको डेल्टा फोर्स के थ्रू आना होगा। ये पूरा नया ऑर्डर शुरू हो चुका है क्योंकि पिछली एजुकेशन और पिछले एग्जाम्स में सब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को का एजेंसी के अंदर नहीं रखा जाएगा। हम लोग इंटेलिजेंस चीफ हैं, विश्व के अन्य इंटेलिजेंस चीफ की पूरी शिनाख्त डेल्टा फोर्स वाले करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, चाहे पैसे का मामला हो चाहे कुछ भी हो, डेल्टा फोर्स वाले ऑर्डर लिखेंगे। सुपर वगैरह सब कुछ डेल्टा फोर्स मैनेज करेगा। इंडियन आर्मी या दिल्ली पुलिस से हमारा कोई मतलब नहीं है। यदि आप लोग काम करना चाहते हैं तो आप बिना देर करे आप डेल्टा फोर्स से संपर्क साधेंगे। दिल्ली पुलिस वाले का एजेंसी के ऑर्डर्स को डेल्टा फोर्स से रिसीव करेंगे, और कोई भी हो तो डेल्टा फोर्स वालों से रिसीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। डेल्टा फोर्स का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी में डेल्टा फोर्स यूनिट से है। बहुत बहुत धन्यवाद। जेएसआर सिक्योरिटीज़ और बाकी सारे ऑर्डर्स जो भी यहाँ से जा रहे हैं वो डेल्टा फोर्स में जाएंगे। फिलहाल आपके लिए एक ही ऑर्डर है, पूरा पाकिस्तान खत्म कर देना है। पूरे विश्व में से एक एक पाकिस्तानी को ढूंढ के मार दो, चाहे वो किसी एम्बेसी में ही क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए हमारे पास स्पेशल बजट है। यूल एंजॉय योर नेशन। आप धरती पे अपने देश को एंजॉय कीजिए। भारत में जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी की प्रचार चलता रहेगा तब तक ब्लैक वाटर और डेल्टा फोर्स वाले भारत में काम करेंगे और इनकी पूरी लॉबी को ढूंढ के मारना है आपको। हम भारत में पूरा पुलिस सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम, यहाँ तक कि एडमिन सिस्टम भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद बनाने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। भारत में सामान्य नागरिकों को हम चेतावनी जारी करते हैं, सलाह भी देंगे, आप इस तरह के मामलों में ना पड़ें। अचानक कहीं पे भी गोलीबारी अगर होती है तो आप लोग बिना देर करे नीचे बैठ जाएं, कि घुटने का बल नहीं बैठना है। आप जानते हैं इजी कंफर्ट इस सिट लेनी है, आप चुपचाप बैठे रहें जब तक फायरिंग होती है, ठीक है? क्योंकि हम इन टारगेट्स को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। यदि आपने ये सोच लिया है कि का एजेंसी को चैलेंज देंगे तो अब आएगा मजा। ठीक है, देख लेंगे भाई तुम्हें भी। देखो तो सही ऐसी कौन से कारखाने से गोली बना के लाए हो यार, हैं? अब हम मारेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हितेश मंडल है।
फिलहाल मैं भारत में राष्ट्रपति हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ अर्थ या बाकी जो भी टाइटल्स हैं मैं फिलहाल उनको बाद में बात कर दूंगा। मैं का एजेंसी चीफ हूँ। थैंक यू वेरी मच। यदि इसके बाद भी अगर किसी ने अपने आप को का एक फोर्स माना तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पे आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया को का एजेंसी में फोर्स के तौर पे रखा जाएगा। सीआईए वाले अपने ऑर्डर जो हैं आईबी से लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आईबी पैटर्न पे काम करेंगे।